Sir, first I like to thank you, sir. Yesterday class discussion was really triggering me, and I am very grateful to you, sir. Thanks a lot, sir. Good. Now I am just totally changing, and I now only I am realizing the reading your books again, so getting clear points, sir. Now only my question is, sir, this superficial, sorry, uh, diagonal meridian is like a real meridian. Like we are following the busy posture, like left hand to left leg, right hand to right leg. So the circulation is happening like this. So my understanding is like it is separate, or why I am asking this question is that during the treatment, how do I decide in the diagonal meridian, say one point I am choosing, which side I need to pick? How do I decide, or what is the things I want to understand? So that is the basic while asking this question. BG meridian doesn't have long meridians. So same side, all points. Same, same. Suppose, sir, no, my question is suppose, sir, like a bamboo spine case, we are saying like rent CV3, rent K3. So now question comes to my mind Now, is, TV and GV, they can be used in the center. They are used in the center. So yes, sir. there's no question of side. Yes, sir. But K3, K3 K4. depends. You want fat side or you want water side? You want yang or you want yin? Or you can use it on both sides. No Oh, problem. okay, sir. Okay, sir. And the circulation is like one, like say, left hand to left leg and right hand to right leg. Both the Nothing side. doing. It's like meridians. The regular meridians, when you were using regular meridians, all the wood, fire, earth, metal, water, all the points are on the same side, isn't it? Similarly, all the points of a diagonal meridian are on the same side. Okay, sir. Now in this circulation, only trunk processor involved, sir. Only trunk processor is involved in this diagonal circulation. Everything is involved. Everything. All Okay. processors are involved. Hmm. Okay. Hmm. Thank you, sir. हाँ केतन भाई, यू कुछ गंभीरता तो है आपके चेहरे पे। सीरियस है आप? क्या नहीं बात सर है? सुन बताइए बताइए, कुछ पूछना है तो नहीं पूछना है। ओके नहीं ठीक है। कुछ नहीं। अभी तक ठीक है सब? हाँ सब ठीक। ओके मुझे देन। क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन होता है, पेशेंट में ही देख लेता हूँ, उसमें जवाब मिल जाता है। मिल जाता है। वेरी गुड। सब मिलेगा, जवाब तो मिलेगा ही। कल हम यूरिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, अनकंटेन यूरिनेशन। क्या था? वो बार बार यूरिन जाना पड़ता था, तो उसके बारे में डिस्कसिंग करते। हाँ हाँ हाँ, इनकंटिनेंस, पॉलीयूरिलेशन, पॉलीयूरिनेशन, और उसके साथ साथ में जब एज बहुत बढ़ जाता कभी कभी इनकंटिनेंस होता है। इनकंटिनेंस का मतलब हुआ कि स्फिंक्टर हैज बीन डैमेज्ड, unable to hold. This sphincter is under the control of kidney and UB. Urine is held by kidney and UB. Hello? हम्म तो क्या करना चाहिए? अगर डैमेज हो गया है, सेल्स आर डाइंग, एट्रोफी हो गई है स्फिंक्टर की, तो क्या हो गया? यीन बढ़ गया कि यांग बढ़ गया, कि यीन कम है कि यांग कम है, क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन बढ़िया सर। वेरी गुड, हु सेड इट? बहुत अच्छे, वेल सेड। कल्याण, यू सेड इट। जी सर जी। बहुत अच्छा।
तो यिन बढ़ गया है, सो यिन हैज टू बी सेडेटेड। यिन कैसे कंज्यूम होगा? यांग से कंज्यूम होगा। हु विल कंज्यूम इट? Yang. Yang. And kidneys are responsible for the holes, front hole and back hole. Lower, both holes are under the control of kidneys. क्या करना चाहिए? किडनी की यांग बढ़ानी है। that will give life. Yang is life. Generation, proliferation of cells. तो फायर साइड ने या बोथ साइड्स, टोटल ची बढ़ानी है तो बोथ साइड्स क्या करेंगे? K3 spiral. Chi means source point का humidity point on the inside spiral. Total chi. Right? क्या करेंगे? यांग बढ़ाना है. So what shall we do? Heat and humidity. Heat, hotness you can take. Heat, hotness, humidity. Tone. Cold, sedate. ये तो एक हो गया, लेकिन इसमें और क्या कर सकते हैं? We have to sedate yin of kidney. Lifelessness of kidney has to be sedated. ये yin कहाँ मिलेगी? हॉरिजेंटल मेरिडियंस में. yin is available in horizontal meridians. So kidney की horizontal meridian में you have to sedate yin. Preferentially fire side और water side, किस तरफ yin को sedate करें? वाटर साइड। किसने कहा वाटर साइड? रमेश। क्यों भाई? यिन बढ़ा हुआ है तो यिन किडनी में। नहीं भाई, यांग हमें बढ़ाना है ना, यांग बढ़ाना है. यांग मीन्स जेनरेटिव पावर, मूवमेंट. जेनरेटिव पावर कहाँ है? फायर किडनी में ज्यादा है ना. ये भी जनरेट करता है, किडनी, वाटर किडनी भी जनरेट करता है, लेकिन क्या जनरेट करता है? ज्यादा यिन जनरेट करता है. तो वहां तो यांग को कम करना पड़ेगा. यिन को कम करे तो नहीं चलेगा. यिन को कम करे तो नहीं चलेगा, ज्यादा यिन प्रोड्यूस होगा. यिन को कम करेंगे तो ज्यादा यिन प्रोड्यूस होगा. वाटर किडनी के यिन को कम करे तो ज्यादा यिन प्रोड्यूस होगा. रमेश, this is a very difficult and sophisticated concept unless you understand. बहुत कठिन है ये, बहुत सूक्ष्म है. वाटर किडनी के यिन को कम किया तो क्या होगा? Let us hear it from Ketan because he is an expert. Ketan, वाटर किडनी के यिन को सेडेट किया तो क्या क्या हो सकता, क्या होगा? तो यिन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी यिन जनरेशन है, तो यांग बढ़ाएंगे तो यिन ही बढ़ेगा. यिन को कम करेंगे तो क्या होगा? इट विल जनरेट मोर ऑफ यिन ची. यिन कम कर देंगे तो यांग एक्टिव है. हाँ, यांग क्या करेगा? जनरेट करेगा. वाटर किडनी की यांग क्या करेगी? जनरेट करेंगे. यिन ची जनरेट करेगी. फायर किडनी मोर ऑफ यांग चीज जनरेटेड. तो यिन को भी हमको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? फायर साइड में सेडेट करना चाहिए. कौन सा? किडनी हॉरिजेंटल मेरिडियन में K10 सेडेट. और क्या कर सकते हैं? यांग को और बढ़ाना है. यांग कहाँ है? वर्टिकल मेरिडियंस में. K3 की बात कर रहे हैं तो ची एक्युमुलेटेड एट K3, वहां की स्पाइरल ले रहे हैं, वहां टोटल ची को ले रहे हैं. तो टोटल ची के लिए, फॉर द टोटल ची, the chi held at K7
is the fire variety. Why? Because K3 spiral starting from K3 means K3 is wood, wind. So directly above, directly in the diagonal, directly in the horizontal, everything is K3 is wind. Next point will be fire. So K3, which is coming after K7, which is coming after K3. K3 के बाद ऊपर कौन आ रहा है? K7. तो K7 को टोन कर सकते हैं वर्टिकली, K10 को सेडेट कर सकते हैं हॉरिजेंटली। ये सब करने से कितना भी बहुत खराब केस भी है, 80% खराब है, फिर भी इट विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। समझ में आ रही है? इसको ठीक से एक बार एक्सप्लेन करें सर, अभी नहीं आया समझ। नहीं आया क्या? नहीं समझ। अभी हम लोगों को देखना है कि यूरिन जो है इनकंटिन्यूस मतलब होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना? किसको होता है? जिसको खास करके लेडीज में, जिन्होंने एक दो बार तीन बार अबॉर्शन करा लिया है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उनको ज्यादा होता है ये। बिकॉज द टू होल्स आर वेरी नियर, एंड मेडिकल टर्मिनेशन में इट इज ट्रांसवेजाइनल, तो दैट गेट्स अफेक्टेड स्फिंक्टर और यूरेथ्रा। छोटा यूरेथ्रा है, पुरुषों में भी होता है, इवन इन मेल्स दिस कैन हैपन, बट वेरी एल्डरली एज में, बहुत ज्यादा एज हो गया, नहीं हो रहा है, यंग कम होते जाता है, प्रोस्टेट बढ़ गया, एनलार्ज प्रोस्टेट है, तो होल्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है? क्या हो गया? स्फिंक्टर में जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, स्फिंक्टर जिससे बना है, स्फिंक्टर समझते हैं कि नहीं गुप्ता जी? समझते हैं सर, वॉल। हाँ, वो उसके जो सेल्स है ना, उसका जो टिश्यू है, वो सेल्स जी मर रहे हैं, डाई डाई डाउन, उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो गई, मसल में पावर ही नहीं है कि उसको रोक सर। ले। तो पावर नहीं है मतलब क्या? डेड हो रहा है। डेड हो रहा है माने यीन एक्सेस हो गया है। यीन एक्सेस हो गया तो क्या करना चाहिए? यीन को सेडेट करना चाहिए, यांग को बढ़ाना चाहिए। हेलो, जिम्मेदार कौन ठीक है? है। किडनी। तो किडनी अब टोटल चीज को रोकना छोड़ना, ये सब टोटल ची का काम है, ना तो यांग का ना यीन का, ची का काम है। तो हमको पहले स्पाइरल मेरिडियन में जाना चाहिए, डायगोनल मेरिडियन में। कौन सा मेरिडियन लेंगे? K3 मेरिडियन। टोटल ची मतलब यीन साइड में सोर्स पॉइंट से चलने वाला स्पाइरल, K3 स्पाइरल। ठीक है। यांग को मतलब क्या हुआ? हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ऑल द थ्री टोन, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, पूरा टोन। ठीक है। ठीक है। K3 इसमें अब लीवर 4, H3 और P9, हम्म, ठीक है इन ना? तीनों को टोन कर देंगे। हम्म। अब हम क्या कह रहे हैं? अगर इससे नहीं हो रहा है काम, और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, मान लिया और एकदम खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, स्फिंक्टर में ताकत ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि उसकी यीन को कम करो। किसकी यीन को? किडनी की। तब हमने प्रश्न पूछा कि ये यीन को फायर साइड में कम करे कि वाटर साइड में कम करे? यीन कहाँ मिलेंगी? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में। यीन ची कहाँ मिलती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो यीन को कम करना है, ड्राइनेस कोल्डनेस को कम करना है। कहाँ कम करना है? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में। किसकी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में? किडनी की हॉरिजॉन्टल में। फायर साइड करें कि वाटर साइड करें कि दोनों साइड करें? आप दोनों साइड भी कर सकते हैं, टोटल ची की यीन कम हो जाएगी।
लेकिन प्रेफरेंस कहाँ होगा? फायर साइड। क्यों? क्योंकि यांग जनरेट तो फायर ही कर रहा है ज्यादा, और यांग जनरेट करेगा तो वो वाटर को भी देता ही है। टोटल ची का मतलब बोथ फायर किडनी एंड वाटर किडनी। तो आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियली जैसे यांग को टोन करने के लिए फायर साइड लिया, उसी तरह हम यिन को सेडेट भी फायर साइड में करेंगे। फायर किडनी अगर ढंग से काम करने लग जाए तभी यांग बनेगा। यांग बनाना ज्यादा, यांग कौन बनाएगा? फायर किडनी की वाटर किडनी? फायर किडनी विल बी फायर जनरेट मोर यांग, सो ट्रीट द फायर किडनी फर्स्ट। नहीं, यू कैन ट्रीट बोथ बिकॉज द होल चीज इज इन्वॉल्व, टोटल चीज इन्वॉल्व। तो किडनी हॉरिजॉन्टल में आपको ड्राइनेस एंड कोल्डनेस को सेडेट करना है। तो एक ही पॉइंट ले लो, कोल्ड सेडेट करो, K10 हॉरिजॉन्टली सेडेट। और क्या करना है? यांग बढ़ाना है। यांग ज्यादा कहां मिलेगा? वर्टिकल में मिलेगा। वर्टिकल। कौन सी मेरिडियन? किडनी की मेरिडियन। किस किडनी तरफ? में भी। फायर साइड। तो K3 स्पाइरल में ची हम ले रहे हैं कहा? सारी टोटल ची कहाँ है? K3 पे। K3 पे। वहां से स्टार्ट है, तो K3 इज विंड। K3 विंड। इज विंड। विंड। विंड से स्टार्ट किधर भी करो, तीन है फायर ना? आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हीट। तो यांग के साइड में सबसे सेवन ज्यादा होगा, तो दैट विल बी K7। K3 के बाद कौन आता है? K7 आता है। K7 K7। तो K7 को वर्टिकली टोन करके देखो, यू विल जस्ट सी द मिराकल। जो अभी तक नहीं देखा वो देखेंगे आप। जिसका इनकंटीनेंस नहीं ठीक होता है उसका करके देखो पहले, जरा सी भी जान बाकी होगी। इवन इफ लिटिल लाइफ इज देयर इन द स्फिंक्टर, इट विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर ची फ्रॉम किडनी। यांग ची मिलेगी। मरते हुए को क्या चाहिए? यांग चाहिए। ठीक है? Am I able to convey myself? यस सर। यस सर, यस सर। कभी कभी मुझे लगता है कि माय लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर। क्या अच्छा है सर। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो ओके। गए। नहीं नहीं समझ। Sir, हाँ बोलिए doubt है करें। sir. Yeah. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। Avi, now, if we wanted to send the energy only to that sphincter, anal sphincter or urinary sphincter, हम्म। then again do you have to go to UV, rent the front shoe point, something like that is required, or directly treatment can be given in kidney meridian? Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Yes, 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 yes. So protocol wise, first बहुत step, हाँ, you बहुत rent अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। You can go to CV3 UV. in May। अच्छा, सपोज CV3 इफ यू आर नॉट एबल टू rent, जो ओरिजिनल पॉइंट है सेंटर में है, तो अगर सुजोक में करोगे तो ध्यान रखना कि इट हैज टू बी यूज्ड ओनली ऑन वन साइड, आइदर राइट और लेफ्ट। कैसे करेंगे? Right side में करो। मेल्स में नॉर्मल बीपी में यू शुड यूज इट ऑन द लेफ्ट साइड, CV, GV। फीमेल्स में नॉर्मल बीपी और लो बीपी ऑन द राइट साइड, मेल्स में हाई बीपी ऑन द राइट साइड। ये सब अपने पंचतत्व सिद्धांत में अच्छे से है सब, जो केयर टू रीड इट सब मिल जाएगा, फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं सब। ठीक। यूरिन इनकंटिनेंस वाला केतन भाई समझ में आ रहा है अभी पूरा? कल हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था। हाँ सर। ये है। तो नाउ इफ वी आर रेडी, यिन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में मिलेगा, यांग चाहिए तो वर्टिकल मेरिडियन में मिलेगा, टोटल ची चाहिए तो डायगोनल, किडनी की टोटल ची चाहिए तो दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों को करना है। यांग चाहिए तो फायर साइड, यिन चाहिए तो वाटर साइड।
ये फायर वाटर किडनी का जो है ना, ये समझिए 30% ऑफ द एक्यूपंक्चर इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम्म। सर हाँ बोलिए। सर ये शुगर के वजह से भी स्वेलिंग आता सर वो पाँव में। पैर में स्वेलिंग आता है कभी, इन मेनी केसेस, आइदर स्प्लीन और किडनी। तो अगर पैर को लटका के बैठने से, काफी टाइम नीचे रखने से स्वेलिंग आता है, तो स्प्लीन है। और अगर ऐसे ही हर समय स्वेलिंग रहता ही रहता है, तो किडनी है। तो फेस में स्वेलिंग होता है, बाद में ये स्प्रेड करता है नीचे की तरफ, दिस इज लंग्स। और नीचे पैर में स्वेलिंग हो जाता है, बना रहता है स्वेलिंग, एंड धीरे ऊपर में धीरे धीरे जाता है, होल बॉडी स्टार्ट स्वेलिंग, फेस और फेस भी स्वेलिंग हो जाता है, दैट इज किडनी। लंग्स का ऊपर से आता है इन्फेक्शन, किडनी का नीचे से आता है इन्फेक्शन। और स्प्लीन इज वीक हो जाता है, तब भी पैर में स्वेलिंग आता है, पैर ठंडे हो जाते हैं, ये सब स्प्लीन यांग या स्प्लीन ची कम हो जाता है, तब वीक हो जाता है। ब्लड को ऊपर उठाने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। बहुत देर तक सर पैर नीचे दोपहर है जी, क्या चीज? दोपहर दोपहर में पैर फूल जाता है, 6-7 बजे के बाद में 12 बजे तक अपने आप स्वेलिंग कम हो जाता है। 6 बजे शाम के बाद? जी, माने जैसे रात होता है, इन जैसे जैसे आप समझ लो वैसा बढ़ता है, तो हम्म। अपने आप स्वेलिंग नॉर्मल नहीं की नहीं नहीं, तरफ हो हॉरिजॉन्टल हो जाता जाते हैं ना, आप बिस्तर में चले जाते होंगे, ये सब होता होगा। रेस्ट लेता सर, रेस्ट रेस्ट लेने के बाद ही नॉर्मल होता वो, रेस्ट लिए तो। नहीं। एक मिनट एक पर मिनट, लेट हिम स्पीक। हाँ। हम्म। अगला कोई मूवमेंट नहीं है, बैठने का ही काम है। ठीक है। 12-1 बजे तक? लेकिन नहीं नहीं, जैसे दोपहर में जो अपना उस काम है, बैठने का काम है उसका। ठीक है। हम्म। मूवमेंट नहीं है। वो अपने आप पैर स्वेलिंग हो जाता है, और एक पैर होता है, वन साइड, राइट लेग जैसा होता है, तो स्वेलिंग होता है। ठीक है। अब उसको वैसा दिखता नहीं है, देखने से मालूम पड़ता है, लेकिन शूज वगैरह पहनता है तो मालूम पड़ता है स्वेलिंग है। अब शाम को जब वापस जो घर जो आता है, रात तक के 12 बजे तक के, वो स्वेलिंग कम होते होते तक के सब नॉर्मल हो जाता है। आप अब वो बताओ क्या, लेट आप बताओ क्या ल, है? ल, लेटे या नहीं लेटे, भाई मेरे को तो भाई यांग बढ़ जाता है दिन में, यहाँ में इन डेफिशिएंसी हो जाता है। एक ही तरफ है ना? एक ही तरफ आ रहा हाँ, है, एक ही तरफ। एक ही तरफ है। अगर कोई ऐसी बात होती तो दोनों तरफ होता। हाँ, तो एक ही बात तो तरफ ये क्यों? है ना, दोनों एक ही तरफ हो रहा है तो एक क्या ही। मतलब? कौन सा पैर है वो देखो। राइट लेग है। राइट लेग क्या है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एज क्या है उसकी? एज हो गए हम लोग करीब 65-68। तो ड्राइनेस से कोल्डनेस में जा रहा है। हाँ। यूरिन का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। और अपने आप फिर, अब वो जैसे मेरे को बताया कि पहले नहीं नहीं सुबह अर्ली मॉर्निंग। नहीं, 12 बजे तक मतलब क्या है ये समझो ना, कौन कौन सी मेरिडियन है। आप सर्केडियन क्लॉक क्यों नहीं देखते? व्हाई डोंट यू सी द सर्केडियन क्लॉक? हाँ, सर्केडियन क्लॉक देखना चाहिए ना। ये बात तो। कब से शुरू होता है स्वेलिंग, शुरू होता है बढ़ना? ओ 10-11 बजे से, 9-10-11। ऐसा हाथ का नहीं। मेरे। हाँ। हाँ। अगर हाँ तो अब भाई, 5 से 7 क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। 7 से 9 स्टमक। नौ लंग्स, से लार्ज ग्यारह स्टमक। है? भूल गया। 9 से 11 क्लीन। स्प्लीन है। हम्म। स्प्लीन निकल गया, स्प्लीन के बाद क्या आ गया? हार्ट। हाँ। हाँ। उसके बाद तो 11 बजे से तो नहीं बढ़ता है ना, दोपहर के बाद बढ़ता है। हाँ। 1 बजे से स्मॉल बहुत। इंटेस्टाइन। 1 बजे से
स्मॉल Small इंटेस्टाइन intestine. अच्छा सही 3 बजे से यूरिनरी ब्लैडर है, हम्म, तो यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड भी है काफी। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ब्लड है, यूरिनरी ब्लैडर में भी है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये शुरू हुआ 3 बजे, 3 बजे से स्वेलिंग बढ़ा, वो देखना चाहिए कब से बढ़ता है। ओके, हम्म? तो अगर 3 बजे से, तो पूरा पूरा साइकिल तो नहीं आया। नहीं, 1 बजे से आया तो भी पूरा साइकिल नहीं आया। सेकंड साइकिल शुरू होती है 11 बजे और खत्म होती है कितने बजे? 1 बजे, हाँ? हाँ? 5 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 5 बजे 7 कितनी पे होती है, 7 o'clock। 7 o'clock. तो आपको ये सेकंड जो सर्किट है उसी टाइम में स्वेलिंग रहती है हाँ, है ना? और ये हाँ, स्वेलिंग, हाँ, और कभी खत्म होती है, कभी कभी कम कब होना शुरू होती है। सेकंड सर्किट के बाद थर्ड सर्किट चालू होगा। हाँ, पेरिकार्डियम स्टार्ट्स एट 7। ओके, ठीक है ना? हेलो? तो राइट लेग को कोल्डनेस ले लीजिए, है ना? और उसमें जो स्वेलिंग आ रही है, क्या हो गया? पूरा तो स्वेलिंग नहीं बना हुआ नहीं रहता है, आता है चला जाता है। वेंट. हाँ, तो उसमें अलार्म पॉइंट देखो कौन सा है, वेयर विच मेरिडियन इज सिक। अदरवाइज इसको देखने से तो पेशेंट को पता ही लग जाएगा कौन से मेरिडियन के अलार्म स्वेलिंग है, किस फिंगर में स्वेलिंग ज्यादा है, किसको पकड़ने से टच करने से ज्यादा पेन होता है, उसमें देख कुछ नहीं करना। हम्म? उसका मॉनिटर। स्टमक 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 मेरिडियन पे उसको इफेक्ट पड़ता है. स्टमक मेरिडियन तो सुबह ही आ जाता है। हाँ, पर उसका स्वेलिंग जो देखता हूँ वो जो जैसे आपने बताया देखा, हम्म। तो वो स्टमक के ऊपर में आता है. मैंने स्टमक मेरिडियन के ऊपर में स्वेलिंग ज्यादा रहता तो स्टमक से कनेक्शन है, किडनी का ही है कनेक्शन, है है. ना? हाँ, फीड करती है स्प्लीन और स्टमक। तो किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी की प्रॉब्लम है तो स्टमक स्प्लीन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप ची को टोन करो। किसमें? स्प्लीन स्टमक, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं, आपको किडनी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लीन स्टमक में होता है, दोनों पैर में हो सकता था, दोनों पैर में नहीं है। सो दिस इज नहीं. डेफिनेटली नर्व। तो आपको यांग मेरिडियंस को टच करना पड़ेगा, ओके. यांग मेरिडियंस को ही टच करना है। अगर स्टमक वाली बात होती है तब भी हमको स्प्लीन को टच करना पड़ता है। स्प्लीन या स्टमक की जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो दोनों की ट्रीटमेंट होती है, केवल स्प्लीन की नहीं होती, केवल स्टमक की नहीं होती। ओके, ची को टोन करो, समझा. ची को टोन। वैसे वैसे राइट लेग कोल्डनेस है, एनर्जी राइट लेग, है? राइट लेग कोल्ड एनर्जी है ना? हाँ, कोल्ड है ना, हाँ, कोल्ड है। स्टमक में रेंट करो, कोल्ड को चले जाओ यूबी में। हाँ, स्टमक को रेंट करके यूबी में ट्रीटमेंट करो. यूबी में ह्यूमिडिटी को टोन करो। अगर यूबी 54 को टोन किया तो K3 को टोन करो। बस ये तीन ही पॉइंट लगाओ, खत्म करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इससे नहीं ठीक होता है तब आगे देखो। हम्म, स्टमक 44, यूबी 54 और K3 मेल है। मेल है. ये 3 पॉइंट से हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो देखो कुछ और अलार्म पॉइंट्स चेक करो। चलो, हाँ, एनीथिंग एल्स? हो गया सबका? सर मेरा मेरा रह गया एक। हाँ, बोलिए।
ये फैटी लिवर में जब फैटी लिवर होता है तो क्या फायर किडनी साइड हॉरिजॉन्टल लिवर मेरिडियन में K1 को अगर सेडेट करें तो फैटी लिवर सही होगा? नहीं नहीं, यिन को सेडेट क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि वो फैटी लिवर है। हाँ। या यांग की बेसिकली फैटी लिवर इज द डेफिशिएंसी ऑफ यांग। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे अभी यूरिन इनकंसिस्टेंसी में करा हमने, तो क्या हम लिवर मेरिड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में फायर किडनी पर K1 को हॉरिजॉन्टली अगर सेडेट करें तो क्या होगा? मतलब उसका इम्पैक्ट फैटी लिवर पे आएगा? हाँ कम बिल्कुल होगा आएगा, फैटी बिल्कुल लिवर? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? लिवर की यिन कम हो जाएगी ना, जी, तो वो यांग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो क्योंकि यहाँ लिवर ज्यादा यांग प्रोड्यूस है। करेगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक, और उधर किडनी भी यांग प्रोड्यूस करेगी। अरे भाई, लिवर 2 लिवर 3 दोनों को वर्टिकल मेरिडियन में टोन कर दो, K1 को सेडेट कर दो हॉरिजॉन्टल में, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाद में देखो क्या कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। भाई लिवर 2 फायर यस है सर, यस सर, और उसके यस ऊपर सर, 3 है, यस सर। तो 2 3 दोनों टोन करो और जी जी, K1 को हॉरिजॉन्टली सेडेट कर दो। ठीक। मैं मतलब उससे यूरिन कंसिस्टेंसी भी तो सॉल्व हो जाएगी फिर सर, अगर है तो। यूरिन का कहाँ से आ गया चक्कर? नहीं नहीं, चक्कर नहीं आ गया, जैसे फायर किडनी की इनकम होगी ओ उससे लिवर हॉरिजॉन्टल में सर। लिवर की कम हो रही, किडनी की किधर से हो रही? कम किडनी तो अच्छा, ट्रीट नहीं लिवर। कर रहे हम, तो लिवर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, अब अंडरस्टैंड। ऐसे कंफ्यूजन करोगे तब तो दिक्कत है डॉक्टर नहीं 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 साहब। नहीं। K1 हॉरिजेंटल मतलब लिवर, लिवर की कोल्डनेस है। ठीक है सर, ठीक हम्म। है। ओके सर। अरे K1 तो इतना बड़ा पॉइंट है, पता नहीं जी क्या सर। क्या करता है ये, साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है, सब बहुत काम करता है ये। यस सर। नींद भी पूरा देता हेड है। तो सर। K1 तो कमाल का पॉइंट है। सर टैबलेट से भी फास्ट रिलैक्स करता सर। टैबलेट भी उतना फास्ट नहीं करता वो केवन, बहुत जबरदस्त। यस, राइट। सर फैटी लीवर में तो यीन एक्सेस होता है ना? यांग डेफिशिएंसी। यीन एक्सेस हुआ तो यांग डेफिशिएंसी हुआ, ठीक तो है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग मानते हैं क्योंकि लिवर बिलोंग्स टू यांग फैमिली, इसलिए TCM में चाइनीज ने यह कहा कि लिवर तो यिन बनाती ही नहीं है, तो यिन आई कहां से? दैट इज वाई डॉक्टर राहुल इज सेइंग कि K1 को सेडेट करें हम हॉरिजेंटली तो शायद मजा आएगा। क्योंकि पहले मान्यता क्या थी कि लीवर तो यिन बनाती ही नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं ना कि यिन बनाती है। लीवर या तो बहुत यिन बनाती है या बहुत यांग बनाती है। लीवर, स्प्लीन एंड फायर किडनी दे बिलोंग टू यांग फैमिली, इजंट इट केतन? यांग फैमिली में कौन कौन है? लीवर है, स्प्लीन है, और फायर किडनी, फायर किडनी। और यिन फैमिली में कौन कौन है? यिन कौन कौन बनाता है? लंग्स, लंग्स हार्ट और वाटर हार्ट। किडनी। केतन भाई। हाँ सर, लंग्स, हार्ट, वाटर, किडनी। हार्ट इतना यिन बनाता है और उसको फायर में रख दिया सबसे ज्यादा यहाँ। केतन भाई भी कभी हम लोग बेसिक में जब मिलेंगे तो वी विल डिस्कस इट। फायर इज मोस्ट यंग, इजंट इट, फेज। इसलिए फायर को समझना बहुत जरूरी है, फायर मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी वेल। चलो हो गया, डन। सर एक सर सर बोलिए। सर ब्लॉकेज में ज्यादा ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज में, हार्ट का कहाँ पे ब्लॉकेज। ब्लॉकेज? हार्ट में? कैरोटिड आर्टरी? हार्ट में सर। कार्डियक? यस सर, कार्डियक से। तो क्या करोगे? सर हार्ट का मीडियन, ऑब्वियसली हार्ट। ऑपोजिट फ्लो में लेना सर। ठीक है। सबसे डोंट फॉरगेट
सबको याद रखना चाहिए। पहले हम लोगों को कोई भी क्रॉनिक पेशेंट आता है, आपको ईओवी लगाना लगाना ही है। चाहिए। SP4P6। यस। 37K6 भी हो सकता है, SP4P6 भी हो सकता है, Si3UB62 भी हो सकता है। आप अपना मेथड से जाइए। कुछ नहीं समझ में आता है तो यस P6 डिस्टल पॉइंट है चेस्ट का, SP4 विल ट्रांसफर yin chi from the yang, yin to yang, and it will clean the pathway of yin। तो बॉडी फ्लूइड और ब्लड का रास्ता साफ करने वाला जो भी ब्लॉकेज है तोड़ने के लिए हमेशा जब भी ब्लॉकेज होता है तो SP4 लगाते हैं। Why? Because this cleans the passage of yin chi। पहले वो लगा दो, उसके बाद यू अब क्या करें, जितनी भी अपोजिट फ्लोर। कार्डियक आर्टरीज किधर से निकलती है, लेफ्ट से निकलती है कि राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट से निकलती है। और एसएमपी कौन है? अभी हम लोग अभी करेंगे, ईओबी करेंगे। ये सवाल आप उसको पूछे, ईएवी में क्या है, आर्टरीज के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, है ना? तो पेरिकार्डियम में सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो वी विल गो एंड वी विल सेलेक्ट दैट, व्हाई, हाउ, और उसमें 5 एलिमेंट कैसे अप्लाई करें, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके। तो उसमें जाकर के हम लोगों को, क्यों, क्योंकि जो ऑर्टा है, नहीं, ऑर्टा जैसे ही निकलता है हार्ट से बाहर, उसी समय वहां से एक ब्रांच निकल के कार्डियक आर्टरीज बनती है। उसकी फिर ब्रांचेज, दो सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। थोड़ा सा एनाटॉमी जानना पड़ेगा, लिटिल बिट ऑफ एनाटॉमी यू मस्ट नो इन ऑर्डर टू बी स्किल्ड थेरेपिस्ट। थोड़ा एनाटॉमी। यस। तो आर्टा का पॉइंट कौन सा है वो देखना चाहिए। और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है LU9, सारा ब्लड वेसल्स का। और SMP क्या है आर्टरीज की? P9 है। तो ये सब देखना चाहिए, वी विल सी दैट। इसी के लिए हम लोगों ने जोड़ा है। और अपोजिट फ्लो, यस। यू आर राइट। और 80% ब्लॉकेज है तो अभी चांस है। जब 90 प्लस हो जाता है तब दिक्कत होती है, 100% ब्लॉक हो जाता है तब और ज्यादा ज्यादा दिक्कत, तब नहीं हो पाता। फिर भी अगर एक्सरसाइज करता रहे व्यक्ति, चलता फिरता रहे, तो आर्टरीज का जो टिश्यू है, ब्लड वेसल के जो टिश्यूज, दे आर मेड इन सच ए वे कि वो अपने आप बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, बाईपास अपने से हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगी। एक रास्ता ब्लॉक हो गया तो दूसरा धीरे 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 धीरे, लेकिन उतने दिन तक उसको जिंदा रखना है। किसी भी तरह जिंदा रखने के लिए आप नीडल्स लगाते रहो, ट्रीटमेंट करते रहो, एंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, वॉकिंग एंड हैंड और लेग्स का मूवमेंट होते रहना चाहिए। तो अपने आप बिना सर वो विदाउट चले चले नहीं, चले हाँ, तो स्वेटिंग आके रुक जाता ना सर। रुकना तो पड़ेगा ही। थकने से तुरंत रुक हाँ जाना आप। चाहिए, तुरंत रुक यस। जाना चाहिए। एकदम ओवर 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 मूवमेंट नहीं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, है ना? हेलो सर। चलना ही चाहिए, हाथ चलाते रहो, पैर चलाते रहो, लेकिन थकने से तुरंत रुक जाना चाहिए। थकने के बाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इफ यू आर टायर्ड यू शुड मस्ट स्टॉप इमीडिएट, स्पेशली इफ यू आर हैविंग एन एलिमेंट ऑफ हार्ट। चलो ये सब बात करेंगे अभी, अभी ये भी करेंगे तो ये ओके। सब डिटेल में बात होगी। ठीक है अभी, डन। ठीक है सर। डन एनीथिंग सर। यू वांट टू आस्क इन बीजी मेरिडियन? पूरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। सो यस। नाउ वी विल गो टू, और एक प्रैक्टिकल किया तो अच्छा लगे।
क्या करेंगे? और एक प्रैक्टिकल सर, बताइए क्या करना चाहते हैं आप? फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर बताइए, फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या कर सकते हैं, बताएं। हाँ भाई, फ्रोजन शोल्डर कर लीजिए जल्दी से, फ्रोजन शोल्डर कर लीजिए। फ्रोजन शोल्डर का क्या मतलब है? इन एक्सेस। यीन एक्सेस है। देखो, एक दो तरह के पॉइंट्स होते हैं ट्रीटमेंट में, लोकल पॉइंट्स एंड डिस्टल पॉइंट्स। सूरज, हैव यू हर्ड? सूरज, आप अनम्यूट करके रखिए, लेट अस टॉक। हाँ यस सर। लोकल पॉइंट्स एंड डिस्टल पॉइंट्स। या डिस्टल पॉइंट कब यूज करते हैं और लोकल पॉइंट कब यूज करते हैं? बहुत से डिजिटल लोग जानते पॉइंट हम हैं। क्रॉनिक क्रॉनिक में डिजिटल पॉइंट यूज करते आज नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैंने देखा है जितने लोग हैं, कभी कभी तो दोनों ही लगाना पड़ता है, वो भी ठीक है, जब टोटल ची की डिफरेंस होती है डेफिशिएंसी। एक बात समझिए, जब कभी एक्सेस हो तो डिजिटल पॉइंट्स आर प्रेफर्ड। जब कभी ब्लॉकेज हो, डिजिटल पॉइंट्स आर प्रेफर्ड। स्टेसिस हो, स्टैग्नेशन हो, डिजिटल पॉइंट्स आर प्रेफर्ड. With them, if you really know how to apply local points, you can apply that also. जैसे फाइब्रॉयड है यूट्रस में, डिजिटल पॉइंट के साथ लोकल पॉइंट भी लगता है, तो ये भी उसी तरह का है। अगर कोई चीज जमा हो गई है, फाइब्रॉयड बन गया, हेमेटोमा बन गया, स्टोन आ गया, कुछ कंजेशन विच इज सॉलिडिफाइड, हम्म। तब हमको लोकल डिजिटल के साथ लोकल भी लगाना पड़ता है। स्टोन हो गया, ये सब में। अदरवाइज एक्सेस है, स्टैग्नेशन है, स्टेसिस है, ये सब में हमको क्या करना चाहिए? डिजिटल डिजिटल। पॉइंट इज, हाँ। जब डेफिशिएंसी होती है तो लोकल पॉइंट्स, डेफिशिएंसी में लोकल पॉइंट्स। इसकी थ्योरी ये है कि जहां कहीं भी आप नीडल डालते हैं, द ची इज अट्रैक्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम्म। जहां भी आप नीडल डालते हैं, ची वहां पे अट्रैक्ट होता है। तो कहीं डेफिशिएंसी है तो वहां पर लोकल पॉइंट लगाएंगे तो ची बाहर से आ जाएगी। और डिजिटल है तो अगर एक्सेस है तो आप दूर में लगाइए पॉइंट, तो वहां की ची घिस के वहां चली जाएगी। अब फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या है? इसमें कई चीजें हैं, देखना चाहिए, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सिंपल जो है, अभी जो शुरुआत हुआ है उसके लिए क्या कर सकते हैं? तीन तरह का शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मूवमेंट इज सपोज टू बी कैरिड आउट बाय नर्व्स। जो नर्व्स हैं, मतलब मसल्स, नर्व माने मसल्स। तो मसल्स आर इनर्वेटेड। कौन से मसल? वो मसल जो बोन के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट हमें करनी है। और वो जी। जो लिगामेंट्स हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी चीज? लीवर। लिवर है। तो ये चीज दिमाग में रखना चाहिए। अब देखो, तीन मेरिडियन हाथ में है। नर्व का मतलब है यांग, नर्व का मतलब है सेकंड प्रोसेसर। सेकंड प्रोसेसर में जो कुछ भी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से नीचे जाता है। वो मेरिडियंस हाथ में नहीं है।
हाथ में कौन सा मेरिडियन है? जो ची को बॉडी से, ट्रंक से हेड में ले जा रहा है, वो मेरिडियंस है। Yang meridians. हाँ। अब यांग मेरिडियन जो ची ले जा रहा है, कौन कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर एंड Yes, sir. SI SI आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब भी ऐसे, जब भी जो दाहिने पैर की स्वेलिंग की बात करी थी हेमंत ने, तो हमने तो कहा था ना कि आइडेंटिफाई करो कौन सा मेरिडियन है। आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे सर एक पैर पैर में बाहर की तरफ क्या है? गॉल ब्लैडर। सामने की तरफ क्या है? स्टमक। पीछे की तरफ पैर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसे जोशी को पैर में ये तीन तीन मूवमेंट, इसी हाथ हाथ में भी मूवमेंट देखना है। साइड में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? नहीं उठ रहा है तो कौन सा जाम है? ट्रिपल वार्मर। सामने की तरफ नहीं हो रहा तो Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। और पीछे नहीं हो रहा तो SI SI ये जाम हो रहा है। तो अगर ये ले जाने वाला चीज जाम हो रहा है, तो बाहर जो उससे कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक कनेक्टेड है, ट्रिपल वार्मर से गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर कनेक्टेड है। तो दो काम हो सकता है। एक हो सकता है कि यहां जो ब्लॉकेज हो रहा है वो ब्लॉकेज कैसे दूर हो, दैट इज वन थिंग। दूसरा क्या हो सकता है कि जो प्रोसेसर में एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, इसको हम खींचे। लार्ज इंटेस्टाइन अगर ब्लॉक है तो स्टमक को खींचे, ट्रिपल वार्मर ब्लॉक है तो गॉल ब्लैडर से खींचे, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक है तो यूरिनरी ब्लैडर से खींचे। हमारे पास पैनल तो दो ही है, बाहर एक एंट्रेंस पे है, एक एग्जिट में है। तो आपने जब पता कर लिया कि मान लो लार्ज इंटेस्टाइन में मामला है, ऐसे हाथ ले जाने में सबसे ज्यादा तकलीफ है, स्टमक मेरिडियन ऑन द अदर साइड यू शुड ट्रीट। ये केस हमारे बीजी मेरिडियन में हमने शायद समझा के लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद है। सर आप मेरे देख ख्याल से लें। जेनरेशन में डाले हो, जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक है। हम्म, नहीं सर, इसमें भी है सर, इसमें पॉइंट्स भी है। कौन सा पेज है? सर पेज कौन सा 106, है? 106। हम्म, शुरू में ही है। राइट राइट, फ्रोजन शोल्डर पहला ही है सूरज। ये देव की दिस इज वेरी ओल्ड थिंग, सालों पहले हमने करा था। सो मे बी नाउ माई थिंकिंग हैज चेंज्ड। सर लगाते ही आराम मिल जाता सर। लगाते ही आराम हो जाता है। हाँ। नहीं This is अभी only अभी horizontal meridian. BG meridians में नहीं है सर. हैं? क्यों नहीं? BG बीजी meridian. मेरिडियन में ही करना है भाई। एक बार क्या हुआ, मुझे अभी भी याद आता है, बड़ी हंसी आती है। कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। मैं महाराष्ट्र आया था, आई वॉज इन यूपी, मैं तो यूपी से था। तो उस टाइम में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई हैड पेड ऑफ कोर्स फॉर दैट टू प्रेजेंट पेपर ऑन बीजी मेरिडियन। मुंबई आया था, तो यहाँ बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स बैठे थे। ऐसे ही आपके जैसा एक पेशेंट आ गया, फ्रोजन शोल्डर। तरह तरह की बात कर, उसका लार्ज इंटेस्टीन में नहीं, ट्रिपल वार्मर में प्रॉब्लम था। ट्रिपल वार्मर वॉज ब्लॉक्ड। ऐसे हाथ नहीं जा रहा था, साइड में। मैंने क्या किया, उसका दो उंगली को पकड़ा, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन सी मेरिडियन है यहाँ पे सूरज? SI Heart. Heart. हार्ट इधर है। Heart. ऐसा ही हमको यांग मेरिडियन देखना है, क्योंकि Yang. मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ नर्व्स, एंड नर्व्स इज ट्रीटेड थ्रू यांग मेरिडियंस ओनली। Yeah.
नर्व्स आर ट्रीटेड थ्रू यांग मेरिडियंस ओनली। बाद में आपको यिन चाहिए तो आप यिन मेरिडियन में चले जाओ फ्रंट शू बैक करके, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। यहाँ कौन सा SI1, यहाँ कौन सा LI1। तो अब अगर ये ट्रिपल वार्मर में मामला है, नहीं तो ये ट्रिपल वार्मर से जो चीज जा रही है वो इधर से निकल नहीं पा रही है। कहां से निकलेगी? गॉल ब्लैडर से निकलेगी। गॉल ब्लैडर से नहीं निकल रही है, इसके मतलब गॉल ब्लैडर ब्लॉक है। दोनों हो सकती पॉसिबिलिटी, मे बी लार्ज इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड, मे बी ट्रिपल वार्मर इज ब्लॉक्ड, मे बी स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड। हमने डिसाइड कर लिया ट्रिपल वार्मर वाला है मामला। क्यों है? क्योंकि ट्रिपल वार्मर से जो चीज आ रही है आफ्टर गेटिंग प्रोसेस्ड इट शुड कम आउट विद गॉल ब्लैडर मेरिडियन, इजंट इट? Yes. तो गॉल ब्लैडर अगर नहीं आ रही, गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज हो रहा है, पहले उसको रिमूव करो ना। हमेशा पहले उसको रिमूव करना चाहिए जहां ची जाएगी। यू शुड ट्रीट दैट विच वेयर द ची इज अबाउट टू गो। खाली नहीं रहेगा रास्ता, साफ नहीं रहेगा गॉल ब्लैडर का, तो जाएगी कैसे ट्रिपल वार्मर वाली ची? तो आपको ट्रिपल वार्मर में ट्रीटमेंट करना है, बाद में करना, कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले किसको ट्रीटमेंट करना चाहिए? गॉल ब्लैडर को। हेलो। जी सर। तो गॉल ब्लैडर में अगर मामला फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है? कौन रोकेगा मूवमेंट? कौन रोक रहा है ची की? यिन रोकेगा। यिन को सेडेट करना है। हेलो। तो गॉल ब्लैडर में यिन को सेडेट करने के लिए यिन कहां मिलेगा? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में मिलेगा। तो गॉल ब्लैडर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में कोल्डनेस पॉइंट कौन सा है? देख के बताइए, विच पेज इज दैट? हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कौन सा पेज में है? पॉइंट्स ऑफ यिन बीजी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, पेज नंबर 36। SI1। SI1, SI1 कहाँ है? SI1 कहाँ है? फिंगर फिंगर में, फिंगर में। SI1 में जो ची, अगर इसको कोल्डनेस को सेडेट करना है तो ची को किस तरफ पुश करना चाहिए? टुवर्ड्स थंब और टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर? थंब साइड। थंब साइड। तो इसको पकड़ के हमने ऐसे घुमा दिया, थंब साइड, ये है ना थंब साइड, इसको हमने पकड़ के इधर घुमा दिए, इधर थंब साइड। और Great. हीट कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन इज हीट। हमने क्या किया? इसको पकड़ के इसको हीट को टोन करना है। किधर किधर करना है? स्मॉल फिंगर। इसको इसको पकड़ के ऐसे, वो आदमी का मैंने ऐसे पकड़ लिया, भाई उठा 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 उठा, वो 50 पॉइंट बताते बताते इधर डालो उधर डालो, ये वो टैन बैलेंसिंग बता रहा था, कम से कम उसने 25 नीडल डाले थे। बाहर आ गए थे हम लोग, टिफिन ब्रेक था, वो पेशेंट को पकड़ पीपल वर डम्बफाउंडेड। बात समझ में आ रही है आपको सूरज? मुझे इसलिए याद है, एक बार और ऐसे एक बार वेस्टर्न मुंबई में एक है हमारा जानने वाले, उनके घर गया था। उधर उनकी बड़ी क्लिनिक है, 3-4 क्लिनिक रखी हुई उसने। ओ एक आदमी आ रहा, उसका शोल्डर ठीक नहीं हो रहा, सिमिलर केस। हमने कहा यहाँ लाओ सुजोक नीडल 2 लगा दो, फिनिश्ड। आप क्या कर सकते हैं? SI1 को हॉरिजेंटली सेडेट कर सकते हैं, नहीं? और GB34 वर्टिकली टोन कर सकते हैं। हेलो शिवा, Yes. यू शुड लिसन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेरिडियंस, SI1 sedate in the horizontal meridian and GB34 is maximum yang in the vertical meridian. So what you can do? अगर उससे भी नहीं हो रहा तो क्या करें? SI1 sedate in the horizontal and GB34 tone on Vertical.
और उससे भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? Then go on the side in which the shoulder is jammed. And if it is triple warmer, take the opposite flow of TW10. That is humidity. Humidity means total chi. Yang meridian में humidity points represent total chi also. Like humidity on the yin meridian represents total chi. Similarly, on yang meridian also the humidity points is taking care of the total chi. Humidity is in the center, transitional phase. That is spiral meridian. Sedate, cooled, tone, opposite flow. Sedate, dryness, coolness, tone, heat. Have you understood, Shiva? केतन भाई, आपकी समझ में नहीं आया है अभी? हिंदी में बोलूं फिर से? ये बीच में अभी जो स्पीड से बोला ना, वो समझ में नहीं है। हाँ, मेरी स्पीड बढ़ जाती है, एक्सीलेटर में पैर गया तो स्पीड बढ़ती है। मैं पूरा पूरा बोलता हूँ, पूरा हिंदी में। ट्रिपल वार्मर साइट टाइप का है, नहीं, इट कैन बी एलआई टाइप, इट कैन बी एसआई टाइप, और इट कैन बी ट्रिपल वार्मर टाइप। तीन ही टाइप के होते हैं। कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ दो होता है, तो हमको दोनों में करना पड़ेगा। एकदम नहीं घबराने का, केवल 5 एलिमेंट में होना चाहिए सब ट्रीटमेंट। सब होगा, टोटल होगा। मान लो ट्रिपल वार्मर वैरायटी ऑफ है, शोल्डर ऊपर नहीं जा रहा है, साइड में, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ अदर साइड में गॉल ब्लैडर को क्लीन करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम लोग? जल्दी से कोल्ड को हटाओ और हीट को बढ़ाओ। हीट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट, तो जल्दी जल्दी खाली करो नॉर्मल फ्लो में। तो गॉल ब्लैडर की यिन कोल्डनेस सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? GB43 पे मिलेगी कि SI1 पे मिलेगी? SI1 पे मिलेगी। तो SI1 को हॉरिजेंटली सेडेट कर दिया नहीं, और इसको सेडेट करने के लिए इसको कंज्यूम कौन करेगा यहां पर अगर है तो? यांग कहाँ है? वर्टिकल मेरिडियन में। सबसे ज्यादा यांग कहाँ है? GB34। वर्टिकली जीबी। आप LI1 को भी करोगे, हल्का फुल्का होगा, तुरंत हो जाएगा। मैंने बताया ना, इस दोनों को पकड़ लिया तो हो गया। LI1 इज हीट ऑफ गॉल ब्लैडर हॉरिजेंटल, है ना? तो SI1 और LI1 तो लगा ही दिया आपने। SI1 सेडेट, LI1 टोन, है ना? और LI1 के साथ में आप UB भी लगा सकते हैं, UB67। दैट इज ह्यूमिडिटी ऑफ हॉरिजेंटल गॉल ब्लैडर मेरिडियन। सारे फॉर्मूले बन रहे हैं आपके पास। और नहीं तो आपने हॉरिजेंटल में SI1 को सेडेट किया, LI1 और UB67 को टोन किया, सब हॉरिजेंटल में। उसके बाद वर्टिकल में GB34 को टोन किया। किस तरफ किया? जिस तरफ शोल्डर फ्रोजन है उस तरफ किया कि दूसरी तरफ? सूरज भाई, फ्रोजन शोल्डर की तरफ। ना 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 ना, अपोजिट साइड। आपको समझ में आया केतन भाई किस तरफ करेंगे? हाँ, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट। वो बताओ सूरज को क्यों, हिंदी में बताइए, क्यों क्यों ऑपोजिट साइड क्यों? यू टेल हिम। क्योंकि वहां फ्लो जा नहीं रहा, इसलिए। इधर से ट्रिपल वार्मर में गया और गॉल ब्लैडर से निकलना चाहिए, निकल नहीं रहा है, तो इधर जाम हो गया ना। आप बात समझिए। अगर इधर से हम इसको, इधर जाने का रास्ता अगर साफ है फटाफट, तो इधर से निकल जाएगा, जाम हट जाएगा इधर। अरे भाई, सड़क में चलते हो, जाम हो जाता है, रेड लाइट हो जाता है तो पूरा जाम होता है कि नहीं? फिर जब ग्रीन लाइट होता है तो सब निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? जी। यहाँ पे भी खाली हो गए तो पूरा निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। कल्याण, आर यू फॉलोइंग? गुप्ता जी, हाँ, आ रहा है, समझ आ रहा है सर। तो अपोजिट साइड में करेंगे कि जिस तरफ फ्रोजन शोल्डर है उस तरफ करेंगे? अपोजिट साइड में सर। अपोजिट साइड में opposite गॉल side। ब्लैडर लेंगे। अपोजिट ठीक है ना? साइड को करेंगे तो रास्ता क्लियर होगा। रास्ता क्लियर होगा तो इधर ट्रिपल वार्मर चला जाएगा। Yes, सीधी sir। बात है एकदम। तो पहला वो ट्राई कर दिया, SI1 सेडेट,
Li1 टोन, ये तो सिंपल हमने आपको बताया, उसको दिखा दिया, उसको कुछ मालूम नहीं है बीजी मेरिडियन। उसी टाइम नया नया, वो तो वहां तो किसी को कुछ नहीं मालूम है, अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं बीजी मेरिडियन, वेरी फ्यू पीपल नो इट। उसके लिए तो जादू, इट वाज अ मिरेकल फॉर हिम, और हमारे लिए तो वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, एकदम सोच के कर रहा हूं मैं। वो सोच रहा है ये जादू है, जादू नहीं है वो। जितना एक्यूपंक्चर का पॉइंट है ये सब लोग समझते हैं जादू है। जादू कुछ नहीं होता भाई, जादू नहीं होता, नथिंग इज मैजिक। सोचना चाहिए। तो आपने वो कर दिया, अभी मान लो इससे भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर क्या हो गया अभी, ऐसा बन गया पूरा जैसे हेमाटोमा फाइब्रॉयड इस तरह का कुछ हो गया, मान लो वहां, हो सकता है ना, मेडिकल टर्म्स आई डोंट नो, बट कैन बी देयर, है ना। फ्रोजन शोल्डर का पूरा एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, हमने नहीं पढ़ी है, Yes. लेकिन आप पढ़ सकते। तब क्या करें, तब यहां ट्रिपल वार्मर में जो कुछ भी मटेरियल है उसको खींच के क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अपोजिट फ्लो, कोई भी चीज में चोक हो रहा है उसको रास्ते को साफ करने के लिए अपोजिट फ्लो यूज करेंगे, किसकी, ची की, नाइदर यांग नॉर यिन। और खास करके जब दो तीन मन पीछे भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, उधर भी नहीं जा रहा है, तब तो करना ही पड़ेगा ची को। ची अपोजिट फ्लो, कौन सी मेरिडियन में अपोजिट फ्लो, ट्रिपल वार्मर की ची TW10, SI की SI8, LI की LI11, उसकी स्पाइरल मेरिडियन, टोटल ची को हम कर सकते हैं। ठीक है। सर दोनों फ्रोजन शोल्डर और आर्थराइटिस हो तो दोनों फ्रोजन इधर, शोल्डर तो बहुत ही कठिन है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एन एलर्जी। यू वर नॉट देयर इन EAV, EAV की क्लास में थे, उसमें थे आप? नहीं था। फिर आपको आता होगा इसलिए नहीं आया। नहीं यार। दोनों घुटने का पेन, दोनों शोल्डर का पेन, दोनों हिप जॉइंट का पेन, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। दोनों फ्रोजन शोल्डर है, वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट सिंपली a meridian case, it is not this, it's not this। यहाँ पे भी जाम है, यहाँ पे भी जाम है, दोनों तरफ पे जाम है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, जान हाँ, नहीं, हम्म, आपका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दूसरा ही है। अच्छा। इट इज सम काइंड ऑफ एलर्जी, जिसका कुछ मालूम नहीं। एलर्जी में क्या होता है, टोटल बॉडी में स्वेलिंग हो, कुछ जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स, मोस्टली लिम्फेटिक, मोस्टली लिम्फेटिक। इनफैक्ट तो लिम्फ के लिए बॉस कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन है। तो सबसे पहले अगर दोनों शोल्डर जाम है तो क्या करना चाहिए, उसमें हम लोगों ने देखा कि मसल्स को देने के लिए लीवर है, अगर इससे भी ऑपोजिट फ्लो से भी नहीं होगा तब क्या करेंगे, गिव पावर टू मसल्स लिगामेंट्स, तो लीवर को टोन करेंगे। वो रीजनल में विंड आती है वहां दोनों फ्रोजन में। विंड आती है, लेकिन है क्या, स्प्लीन। हम्म। अब आप देखो, एलर्जी के लिए हम लोग स्प्लीन को ही ट्रीट करते हैं ना, लीवर और स्प्लीन, एलर्जी के लिए क्या है, लीवर स्प्लीन एक्सिस है। तो हम्म। सबसे पहले यू शुड गो टू फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रीट इट। उसके बाद एलर्जी है, एलर्जी मीन्स हॉरिजॉन्टल मामला है। तो आपके पास डॉक्टर वॉल ने एलर्जी का पॉइंट दिया है, AD2, एडी। AD1B, ये दोनों लगेगा, दोनों साइड लगेगा, प्लस स्प्लीन ची। और स्प्लीन को अगर बढ़ाना है तो लीवर को क्या करना होगा, सिडेट करना होगा। सीडेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्योंकि स्टैग्नेशन है, क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू, लीवर ऑपोजिट, की स्पाइरल अपोजिट फ्लो, ऑपोजिट फ्लो। क्या करेंगे, यिन सेडेट यांग टोन।
केतन भाई, हाँ हाँ सर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। वाई स्प्लीन? अभी मैंने लिम्फ के है एलर्जी के लिए, एलर्जी और लिम्फ के लिए। लिम्फ के लिए, इट इज ऑल एलर्जी मीन्स आइदर द ब्लड वेसल्स or the lymphatic vessels have got swollen. Why? Because some toxins have infiltrated those vessels. तो टॉक्सिन्स को टेक केयर कौन करता है? लिवर, वो, और इधर स्प्लीन. So spleen is weak, right? And liver is stagnated. That is the answer. हाँ जो सर, ये वही वही पेशेंट को फैटी लीवर है और उसी को ही नेवल का हार्निया है सोनोग्राफी में। चलो, वो तो आप पेशेंट का माँ आप डिस्कस कर लेना. नहीं आया था उसी बताइए, को ही आया था। समझ में आ क्रॉनिक रही है कंडीशन। अभी आपको? समझ में आ रही है कुछ बात मेरी? लॉजिक, हाँ लॉजिक सर। यस सर। तर्क सर संगत लगना चाहिए ना. सूरज भाई, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कर सकते हैं? जी जी फर्स्ट सर, स्टेप, बिल्कुल। सिंपल डिस्टल मेरिडियन. अगर ट्रिपल वार्मर है तो गॉल ब्लैडर को ट्रीट करो. लार्ज इंटेस्टाइन है तो स्टमक मेरिडियन को ट्रीट करो. स्मॉल यस। इंटेस्टाइन है तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को ट्रीट करो. हम्म, समझ में आ रही ना? और जी जी। साथ में वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं. और अगर इससे भी नहीं हुआ तो जिस साइड में फ्रोजन शोल्डर है उस साइड में स्पाइरल मेरिडियन अपोजिट फ्लो. हम्म, ठीक समझ में आ रही है? ओके। यस। आपको केतन समझ में आ गया? दैट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ सर। दोनों शोल्डर बहुत बहुत डिफिकल्ट है. नॉट एवरीवन कैन सॉल्व इट. लेकिन आपको अभी मैंने क्लू दिया है, यू कैन ट्राई. यू हैव गॉट ए ट्रू क्लू. ये सब है, क्लास में आने से ये सब मिलता है केतन भाई. रिपीट करने से भी कुछ ना कुछ फायदा होता ही है. 100% होता सर, 100%। हम्म. हर बार नया सीखने को मिलता सर, हर हाँ, बार। हम खुद सीखते रहते हैं. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट. हम भी आपके जैसे ही हैं. और वैसे भी हमारी तो वैसे भी समझ थोड़ी कम है. तो हमको तो टाइम नहीं लगता सर। है समझने के लिए. हमको बहुत टाइम लगता है. Sir, just to confirm, sir, single side frozen shoulder, if you take a spiral meridian of GB, triple armor type, in GB spiral, which one, sir, we need to take? GB 34 or? जीबी इज इन द लेग, इट इज नॉट इन द हैंड. Yes, sir. सो शोल्डर तो हैंड का पार्ट है भाई. किधर है? Oh, पैर का किधर है so in triple armor, we have to take, sir. भाई? हाथ में तो तीन ही मेरिडियन है ना, यांग वाले. देयर आर ओनली थ्री मेरिडियंस इन द हैंड, यांग मेरिडियंस. Yes, व्हिच sir. मेरिडियन? जीबी इज नॉट देयर. Yes, sir. But in triple armor itself, 6 meridian is there. So which one I need to pick, sir? Triple armor itself, there are 6 spiral meridian, right? TW10. वेल सेड डॉक्टर साहब. नाउ यू टेल हिम व्हाई. बिकॉज़ टाइम एंड अगेन हमको बोलना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होती है. TW10 or TW2 is my TW10 Yeah. because humidity in yang meridian is the G meridian. Here Total in this G. excess, no. स्टैग्नेशन No. निकालनी है भाई. You want to remove the stagnation from the TV, so you can choose TW10 spiral meridian opposite flow, sedate the things. सेडेट कोल्ड, ड्राइनेस, टोन, हीट, ह्यूमिडिटी. नीड डाइविंग आल्सो. तीनों कर सकते क्या है? जोशी जी, आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ रहा हूँ सर. वो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम वही है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट. नहीं, दैट इज द मिडिल पॉइंट. ट्रांजिशनल फेज, अर्थ फेज इज द हाँ हाँ ट्रांजिशनल हाँ फेज. हाँ. वेदर यू गो ऑन द यांग साइड और ऑन द यिन साइड, दोनों तरफ ट्रांजिशनल फेज तो ह्यूमिडिटी ही है, अर्थ ही है.
हाँ तो दैट इज मैक्सिमम ना, वहां हाँ, से उसको तो फिर नीचे जाना है, दैट उसको इज व्हाट आई पूरा मीन। उठाए तो सब कुछ पूरा उठेगा, उसको नीचे गिराए हाँ तो सब कुछ नीचे गिरेगा। नहीं, हाँ कोल्ड के साथ लिए थे कोल्ड होता, हीट के साथ लिए थे हीट होता सर। देखो ये अपना नया फॉर्मूला लेके आया है, एकदम बिल्कुल। जितना क्लैरिटी थिंकिंग में रहेगा, द मोर यू आर क्लियर इन योर थिंकिंग, द बेटर प्रोटोकॉल्स यू कैन जनरेट। कुछ नहीं है, सिंपल इंजीनियरिंग है भाई, फिजिक्स है। नाला, घर का नाला अगर आपका चोक हो गया तो भी वही करते काम आप जो इधर कर रहे हैं, बस हो गया उतने। कहाँ ब्लॉकेज है वो क्लियर करो पहले। बस अरे भाई, हम तो कहते हैं कुछ भी, आप नेचुरोपैथी में जब जाते हैं, एनी डिजीज व्हाट दे विल डू, दे विल एम्प्टी योर कोलोन फर्स्ट। सबसे क्लीनिंग, कुछ भी क्लीनिंग नहीं करेंगे, क्लीनिंग। दे विल पर्ज। आप जाके देखो किसी भी, कहीं भी नेचुरोपैथी में जाओ, सबसे पहले कोलोन को तो कोलोन खाली करो, कोई भी बीमारी होने दो, एनी डिजीज एक्स वाई जेड, कोलोन खाली करो। बहुत बड़ा काम है कोलोन खाली करना। हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि एक्यूपंक्चर से कोलोन कैसे खाली करें। दिस वी विल हैव टू लर्न। सर किडनी में हीट बढ़ा दिए तो पूरा मोशन से तो नहीं सर। ऐसा नहीं, जनरली हीट बढ़ा तो लार्ज इंटेस्टाइन में किडनी। अपना कॉम्प्लिकेटेड है। यस सर। एनीवे, लेट अस स्टिक टू व्हाट सूरज हैड आस्क्ड। सूरज, आपको फ्रोजन शोल्डर का अभी मालूम पड़ गया, यू कैन डू इट। आप यस कर यस सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कर सकते यस, वेरी गुड। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? अभी तो 6-7 मिनट रह गया, हाँ बोलो। सर, हम्म। मेरी बेटी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है सर। शी इज 12 years। रिसेंटली एक 3 months बैक शी हैड डेंगू। है डेंगू? डेंगू, यस सर। सो कितना 3 महीने का है? हाँ सर 12 साल। 13 साल। 3 महीने के पहले आया था। हाँ अच्छा। एज इज 12। अच्छा, 12 साल का है। एज इज 12 नाउ। हेयर फॉल ऐसा क्या है, ऐसा पकड़ के खींच रहे तो निकल जा रहा है। तो अगर बीजी हम्म। में अगर करना है या ईओ में करना है तो एसेंस मतलब आई एम अनेबल टू कॉम्प्रहेंड व्हाट आई शुड डू। आई वाज जस्ट थिंकिंग फ्रॉम लास्ट नाइट। पहले क्या हुआ था? डेंगू, उसके बाद शुरू डेंगू हुआ हुआ ये काम, ये बाल का ये निकलना, आफ्टर डेंगू इट हैज स्टार्टेड। यस सर। उसको क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, लीवर इज एक्सट्रैक्टिंग, ओवर एक्सट्रैक्टिंग ची फ्रॉम मदर, दैट इज किडनी। लीवर को जितना ची लेना चाहिए उससे बहुत ज्यादा ची ले रहा है। इधर वो ले रहा है या ले ही नहीं रहा है। इन एनी केस, व्हाट इज इट? निकल जाना मतलब विंड, विंड इज एक्सेस एंड ड्राइनेस। तो विंड को सेडेट करना है, माने ड्राइनेस को भी सेडेट टोन करना है और ह्यूमिडिटी को भी टोन करना है। ड्राइनेस एंड ह्यूमिडिटी बोथ हैव टू बी टोनिफाइड एंड विंड हैज टू बी सेडेटेड। सिर के बाल के लिए किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल। और चूंकि डेंगू का मामला था, डोंट फॉरगेट टू स्प्लीन को, मैं बताता हूं एक मिनट। आया,
सॉरी, कल्याण, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, लीवर का कनेक्शन Yes, सीधे sir. हेड से है। वैसे तो इफ यू हैव जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची, उसमें हमने कनेक्शन दिखाया हुआ है, यू कैन सी दैट, यू कैन ट्राई टू यूज इट। लेकिन द अदर डे दूसरा एक लेक्चर हो रहा था, तो मैंने बताया था कि जब समुद्र का पानी उठता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, बाद में कोहेसिव फोर्सेस से बन के, देयरफॉर लीवर 8 में जाके कोल्डनेस होता है। लीवर 8 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लीवर 1। लीवर 1 कहाँ है? ग्राउंड ग्राउंड लेवल में है, और लीवर 8 कहाँ है? ऊपर है। ऊपर, एंड कोल्ड हो गया, वहां जम गया। So anything regarding scalp or brain or head, etc., you should not forget the Hisi points. And kidneys are supposed to be responsible for your hair of the head. Scalp है। What should you do? अभी renting काम आएगा. You had understood the renting very well. What should you do? Lever 8 rent. Okay, sir. K10 spiral जाना है सर। Now K10 spiral में क्या क्या करेंगे? Wind sedate. Combined method. Yes, sir. कंबाइंड मेथड मींस एंटी सब्जुगेशन एंड सब्जुगेशन, एक पॉइंट सब्जुगेशन का, एक पॉइंट एंटी सब्जुगेशन, मतलब ड्राइनेस एंड ह्यूमिडिटी। सो विंड सेडेट एंड ड्राइनेस एंड ह्यूमिडिटी टोन। तो विंड सेडेट करने के लिए कौन सा स्पाइरल लेना चाहिए? सबसे ज्यादा विंड किस में है, किस स्पाइरल में है? लीवर Liver 1। किडनी की कौन सी स्पाइरल में सबसे K1, ज्यादा K1, विंड? K1, K1, K1. K1। क्योंकि विंड सेडेट करना है तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? विंड की चीज। K1. विंड अलग चल रही है, वाटर अलग चल रहा है, मेटल अलग चल रहा है, सब अपने चल रहे हैं, सब हर एक वैरायटी की चीज चल रही। लीवर 8 को रेंट किया तो किडनी में चले गए। अब जो चाहो सो किडनी में करो, वो जाएगा उधर ही। और बच्चा अभी वुड फेज को ही बिलोंग कर रहा है 12 जी सर। 12 साल में, एंड दिस इज टॉप मोस्ट है। 12 से 14 15 साल तक उसका बालपन जो है, बचपना खत्म हो जाएगा। इज ही अदरवाइज हेल्दी दैट बॉय, बॉय और गर्ल, हुसोवर? Yes, girl sir, healthy गर्ल है, शी इज अ गर्ल, girl है। Yes sir। तो अदरवाइज हेल्दी है, अदरवाइज कोई मतलब हर 6 प्रॉब्लम नहीं महीने है। में एक बार मतलब हर 6 महीने में थोड़ा विंड चेंज होता है, तो मौसम चेंज होता है, तो थोड़ा बुखार आता रहता है सर। हाँ, इम्यूनिटी थोड़ा। तो आप ईओवी तो यूज करना पड़ेगा, ईओवी यूज करना पड़ेगा सामने के ऐसे के लिए। K7 LU7 K6 TW5 GB41 K6 LU7 एज पर रूल्स। उसके बाद लिवर 8 रेंट, कम टू किडनी, K1 स्पाइरल, विंड सेडेट, heat and dryness and humidity tone. Dryness humidity is very in, बहुत in है। एंड फिर क्या करेंगे? कंट्रोल इज P9 स्पाइरल, P9 सेडेट। स्पाइरल में, क्योंकि स्पाइरल मेरिडियन ले रहे तो स्पाइरल मेरिडियन। समझ में आ गई कि लिखूं? शुड आई राइट? और मैं तो लिख लिया सर, लिखेंगे तो लिख दीजिए, नो अच्छा, लिख लिया तो ठीक है, अच्छा है। प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ईओवी कौन सा करेंगे?
अच्छा, लड़कियों के मामले में मैंने एक बार शायद कहा था, कुछ भी बीमारी होने दो, TW5 GB41 K6 Elution. मेरी बड़ी बेटी के लिए आपने बोला था, आई हैव बीन यूजिंग इट, इट वर्क वेरी वेल। So you should have told me, यार, I should have been happy. Sure. The rhythm. When you're Make me talking about also the happy. rhythm, I want to make you happy. Similarly, you should Hmm. also make me happy. sure. Yes, sir. The rhythmic, you said the cycle with anything rhythmic. You said TW5 Anything GB41. is cyclical. In the body, पूरा meridian में superficial चीज also making circles. The deep chi is also making circles. सब सर्कल में चल रहा मामला, और लाइफ Good. एंड डेथ भी सर्कल में चल रहा है। डेथ, लाइफ, बर्थ, डेथ, बर्थ, डेथ, बर्थ, ये सब साइकिल है भाई मामला। So why these days Iqbal is not coming? Has he fallen sick or something? Maybe. I don't know. He was the first man to come. मैं फोन करूंगा कभी। सो अभी समझ में आ गया ना अभी आपको कल्याण। Yes, सो sir. यू कैन, जी सर। हाँ, यू कैन डू इट बिकॉज शी इज अ लिटिल गर्ल, स्मॉल गर्ल। यू शुड ट्राई टू हेल्प हर, श्योर एंड सर। शी योर ओन डॉटर, डेफिनेटली। गुप्ता जी। सर हाँ। सर एक बात, हाँ। सर कल्याण सर से बोल रहे हैं सर, ये सर हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। सर वो लड़की का बॉडी हीट है या कोल्ड है, एक बार बॉडी को हीट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, एक बार चेक करना सर। कभी अंडा खिलाए तो कैसा रहता, कभी प्याज खिलाए तो कैसा रहता, एक बार चेक कर रहे तो उनको समझ में आया था ट्रीटमेंट का। We don't eat eggs, sir. Pure हाँ vegetarian. हाँ हेड, मतलब कभी चेक करो, हीट हीट का फूड दे के चेक करो कभी कैसा रहता है उनका बॉडी का। Okay. डेंगू मीन्स प्लेटलेट्स आर had gone down, कभी जब डेंगू रहा होगा। प्लेटलेट्स बनाने का किसका काम है? लिवर का। लिवर इज गोइंग टू हेड, इट इज कनेक्टेड टू GV20, गवर्नर वेसल 20 से लिवर कनेक्टेड है। एनीवे, ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोग 5 एलिमेंट वाले आदमी हैं, हम तो 5 एलिमेंट में ही सोचते हैं। हमारी तो Yes, sir. लिमिटेड बुद्धि भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो आज की बात तो आज हो गई, कल से हम लोग करेंगे EAV, कल और Yes. परसों। आई थिंक सैटरडे संडे वी विल हैव टू गो फॉर क्लासेस बिकॉज आई हैव टू गो आउट इन फैक्ट फॉर अबाउट 8 to 10 days, मे बी 15 days, आई डोंट नो। तो उसके पहले आई वांट टू फिनिश इट। तो अभी हमको लगता है कि बीजी मेरिडियन में सारे क्वेश्चंस हो गए। यिन मेरिडियन में, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में यिन मिलता है, वर्टिकल मेरिडियंस में यांग मिलता है, और स्पाइरल मेरिडियंस में पूरा टोटल ची मिलता है। ये समझ गए हम लोग। मिलता है। ची कब यूज करना है ये भी हम लोग समझ गए। कोई भी रियल टाइम मूवमेंट हो, कोई भी आपकी टिश्यू का मामला हो, नहीं, तो टिश्यू के मामले में ची यूज करना चाहिए। सेल्स के मामले में वर्टिकल मेरिडियंस यूज करना चाहिए। यांग है, टूट जाएगा, एक एक सेल अलग अलग हो जाएगा। तो खूब यिन यांग को पूरा अच्छे तरह से समझ लिए तो सब काम होता है। सो ऑल ऑफ यू शुड कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन लेवल 1 एंड लेवल 2। नेवर गेट टायर्ड ऑफ अटेंडिंग लेवल 1 एंड लेवल 2। करते रहो, सुनना, चुपचाप सुनते रहने से क्या है। अपने आते ना वेंकटेश्वर लू, ही ऑलवेज लिसन्स क्वाइटली, सिंपली, नेवर रिएक्ट्स, नो रिस्पॉन्स। आ जाते हैं अपना सुनते रहते, डेफिनेटली ही मस्ट बी। ठीक है। सो वी आर मीटिंग टुमारो सैटरडे एंड वी आर डूइंग EAV। वी कांट लीव इट बिकॉज आई हैव टू गो आउट। ठीक है। ओके सर।